Question number 10th, exercise 4.3. An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometers. So it is given that the speed of the express train is more than the speed of the passenger train. That's why it takes 1 hour less to cover a distance of 132 kilometers. And further, it is given that the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train. So how to start? Let the speed of passenger train be x kilometer per hour. So what is the speed of express train? So therefore the speed of express train कितना है? 11 km per hour more than the previous one, so it is x plus 11 km per hour. Now moreover, it is also given that the distance covered by the train is 132 km. Now distance covered is 132 km. ये भी बेसिक दोनों सेम है. So if you know the speed and distance, we can find the relation of the time. So therefore the time taken by passenger train. So students, we know the relation between speed, distance and time. We know that speed is distance upon time. So what is time? Time is distance upon speed. Understand students? So put the values. Distance is how much? 132 and speed of the passenger train is x. So this is the time. Understand? बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, that speed is equal to distance upon time. तो अगर टाइम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम इज डिस्टेंस upon speed. Okay, so and the time taken by express train कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला इज डिस्टेंस कितना है? 132 and what is the speed of the express train? That is x plus 11. ठीक है, तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, but it is given that the express train takes 1 hour less. तो ये जो टाइम है, this is 1 hour less than this. So मतलब क्या हो गया? That this is equal to 132 minus x, or this is equal to 132 upon x plus 11 plus 1. So according to कंडीशन क्या दिया हमें? that this speed, जो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन is 1 hour more. So therefore 132 upon x plus 11 plus 1. Understand students? अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 132 upon x and the LCM is x plus 11. तो क्या हो जाएगा हमारा? 132 plus 1 times x plus 11. So by cross multiplication, so first of all we have to simplify it upon x. 132 plus x plus 11 upon x plus 11. So when you simplify it further, what you get? 132 times x plus 11 equals to x times 132 plus x plus 11. Now we have to open the bracket. So what we have? 132x plus 11 to 22, 33, 35, 3, 1452. So it is 132x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई करके आगे वी गेट दिस। तो इस तरह से अब देखिए these two terms can be cancelled out because both are having the same terms. Now shift this to that side so that the coefficient of x square remains positive. So x square plus 11x minus 1452 equal to 0. अब रही बात how to split the middle term. So what we do, we find the factors of 1452. So बेटा हम इसको यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। कोई तो लेंथी टर्म है, थोड़ी बड़ी टर्म है, तो we can't find it orally. 2 7s are 2 2 6 2 3 63 3 1 21, ठीक है। So because so when you further find 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 12, 2 to 6, 2 6 are 12, 2 to 6, then 3 1 3 3 to 6, ठीक है। then 11 11s are 121. so अब देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स को हम प्लस माइनस करें कि वी गेट 11। नाउ देखिए 11 3s are 33 and 22 2s are 44. so अब इसमें आपको ये देखना है कि फैक्टर्स क्या होंगे पॉसिबल। तो क्या आ जाएगा 11 into 3 33, 22 4 44 and we know that 44 minus 23 कितना होता है 11. so it means the factors are 44 minus 33x minus 1452 equals to 0. ओके बच्चों, तो अब हम इसको बिठा देंगे जो हमने फैक्टर्स ट्राई किए थे। तो इस तरह से बच्चे आपको पेयरिंग करके ये देखना है कि विच आर द पॉसिबल फैक्टर्स। नाउ ओपन इट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0. सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 इक्वल टू 0. सो इस तरह से क्या होगा, हमारा क्या आ गया x प्लस 44 into x minus 33 equal to 0. So either this 44 equal to 0 or x minus 33 equal to 0. So when we solve it, what is the value of x? Minus 44 और यहाँ से वैल्यू होगी 33. So बताइए which is the possible value? Because we know these are the speed, x is the speed and speed can never be negative. So it means the speed of the passenger train क्या हो जाएगी? So therefore speed of passenger train is how much? It is x means 33 kilometer per hour and the speed of express train. अब बच्चों ये स्पीड कितनी दी गई थी, हमने कितनी ली थी एक्सप्रेस 11, तो हम इसमें 11 प्लस कर देंगे and in this way we are able to get the speeds of both the trains. Question number 11. Sum of the areas of two squares is given to be 468 meters square and if the difference of their perimeters is 24 meters. अब बेटा इसमें हमें कोई साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स निकालनी है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि उनमें साइड्स क्या दी, बिकॉज साइड्स में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो डेट्स व्हाई हियर वी हैव टू टेक द साइड्स एज एक्स एंड वाई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर हमें साइड्स की रिलेशन दी होती तो हम लिखते हैं कि लेट वन साइड इज एक्स, अदर की कुछ समथिंग बोलते हैं हम प्लस या माइनस जो भी है, ठीक है। सो अब आपको इट मीन्स इसमें क्या लेंगे हम, लेट द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी एक्स। अब हमको किसमें दिया है, इसमें मीटर्स में, बी एक्स मीटर एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी वाई मीटर। और हमें अभी क्या बोला है
कि सम ऑफ देयर एरियाज, वी नो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड इट इज गिवन दैट सम ऑफ द एरियाज, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन that sum of areas of two squares is given to be how much, 468, means x square plus y square is equal to 468। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स। अब पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, now according to second condition, अब हमें डिफरेंस बोला है बेटा, ऑब्वियसली बात है डिफरेंस पॉजिटिव तभी आता है इफ वी सब्ट्रैक्ट स्मॉल टर्म फ्रॉम द बिगर टर्म। तो बिगर टर्म मीन जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, तो पेरीमीटर उसी का ज्यादा होगा जिसका लेंथ ज्यादा है। तो मीन्स की व्हाट वी से दैट द पेरीमीटर ऑफ bigger square minus perimeter of smaller square is given to be how much? The difference is given to be 24 meters. So now put the formula. Perimeter square कितना होता है, 4 into side कितना हो गया 4x, smaller कितना हो गया 4 into y is equal to 24. So in this way, when we take 4 common, what we get, x minus y, 24 by 4 कितना होता है 6। So कितना आ गया हमारा, x is equal to 6 plus y. This is what, second. Now we have to put this value of second in first. So putting second in first, so in place of x what we write, 6 plus y का whole square, because x is 6 plus y plus y square equal to 468. Now you have to apply the identity. So 36 a square plus 2 into a into b, 2 into a into b plus y square is equal to 468. Now when we solve it further, 6 to the 12, 12y plus 2y square equals to 468. Shift these term to this side, तो ये स्क्वायर की टर्म पहले आ जाएगी, 2y square plus 12y plus 36 minus 468 equals to 0. So what we have, 2y square plus 12y, when you subtract it what you get, 2 3 422 equal to 0. So 2 common, y square plus 6y minus 216 equals to 0. So हमारा क्या बच गया बेटा, when you shift this 2 to this side, 0 by 2 क्या होता है 0. Now अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 216 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 2 इंटू 108, 2 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर्स किसके आ गए 216 के। नाउ वी हैव टू मेक देयर ग्रुप सो दैट वी गेट 6. सो 3 इंटू 3 9, 2 18, 4 3 12, 18 एंड 12, तो मीन्स यहाँ क्या आएगा, 18 minus 12y minus 216 equals to 0. तो when you open the bracket, y square plus 18y minus 12y minus 216 is equal to 0. So taking common, what is common, y common, y plus 18 minus 12 common, y plus
18 इक्वल्स टू 0. ओके, अब हमारे पास क्या वेक्टर आ गए, एक आ गया y प्लस 18, एक आ गया y माइनस 12 इक्वल टू 0. सो व्हेन दिस इक्वल टू 0 and y minus 12 equal to 0, so what are the possible values of y? Minus 18 and 12. तो minus 18 होगा नहीं, because this is what? Negative term, and length can never be negative, so it is invalid. So beta y is equal to 12 आ गया, मतलब the side of a smaller square is 12. And how to get the side of a bigger square? You have to put the value of 12 in second or in first. Better आप second में put करिए. So putting y is equal to 12 in second. So what we have x? X is 6 plus y means 6 plus 12, that is 18 meters. So this is how what we write. So therefore side of bigger square, side of बिगर स्क्वायर क्या आ जाएगा, x that is 18 meters, एंड स्मॉलर स्क्वायर की क्या आ जाएगी, क्या लिखा है 6 प्लस वाई, बिकॉज दैट इज व्हाट x 18 था, यह आ गया बिगर की, और स्मॉलर कितना है y दिया हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू y एंड द वैल्यू ऑफ y इज 12. तो इस तरह से वी आर एबल टू गेट the sides of square. Okay students, now I will take one very important example from your textbook, example 15. It is the relation between the speed of motorboat and the speed of stream. So question is, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water, मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो स्पीड ऑफ मोटरबोट कितनी दी हुई है 18 km per hour. In still water takes 1 hour more to go 24 km upstream. Upstream means against the flow. Downstream means towards the flow. Find the speed of the stream. Stream means the flow of water. So let the speed of stream be x km per hour. और हमें क्या गिवन दी है, speed of motorboat, speed of motorboat in still water, मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो उसकी स्पीड कितनी दी है 18 किलोमीटर पर आवर. स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो जस्ट लुक एट. अब देखो बेटा, अगर पानी रुका हुआ है तो स्पीड इतनी है, और अगर पानी चल रहा है उसकी पानी की स्पीड दी है x, तो मतलब अगर बोट टुवर्ड्स द वाटर जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगा 18 प्लस x, और अगेंस्ट जाएगी तो 18 माइनस x. सो देयरफॉर स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मीन्स टुवर्ड्स द फ्लो, तो इसमें क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ मोटरबोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितनी दी हुई है 18 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें फ्लो जो पानी है उसका फ्लो जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी. सो व्हाट वी हैव 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. आप सोच रहे हो कि बेटा देखो यहाँ पर तो आप 18 प्लस एक्स लिखो या 18 प्लस एक्स प्लस 18 लिखो चलेगा, बट यहाँ पर हम एक्स माइनस 18 नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, और इन दोनों में जो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, बोर्ड की स्पीड ही ज्यादा होगी, तभी तो वो अगेंस्ट द फ्लो जा पाएगी. ओके, अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस वन वे इज 24 किलोमीटर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वन वे मीन्स या तो अपस्ट्रीम या तो डाउनस्ट्रीम इज गिवन टू बी 24 किलोमीटर्स. तो बच्चों
अगर आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो वी नो द रिलेशन ऑफ द टाइम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था. सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय मोटर बोट पहले क्या लेंगे हम, डाउन स्ट्रीम. सो टाइम का फॉर्मूला है सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 24 एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है, 18 प्लस एक्स आवर्स. ये आ जाएगा एक. एंड टाइम टेकन बाय मोटर बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मीन्स सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज 24 एंड अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है, 18 माइनस एक्स आवर्स. ठीक है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है. बट इन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम. मतलब अपस्ट्रीम में वो ज्यादा टाइम लगाएगी. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से क्या है, 1 hour ज्यादा है. मतलब इन दोनों का डिफरेंस 24 टाइम्स 18 माइनस एक्स माइनस 24 टाइम 18 प्लस एक्स कितना होगा, 1 होगा. बच्चों आपको मालूम है कि जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा ही लगता है. तो यानी ये टाइम ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 1 hour. तो माइनस करके 1 आएगा. अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए. सो इट्स एलसीएम इज 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स is equal to 1. Now what we have to do, you have to multiply it further. Now you have to open the bracket. So 24 into 18, 7, 36, 43, 432 plus 24x. Okay students, अब minus 24 into 18, same 432 minus plus 24x. Got it? Then what we have to do? Now we have to multiply it further. So 18 a square minus b square आ जाएगा इसमें. So 18 square minus x square is equal to 1. So what is 18 square? It is 324. ऐड करो, कुछ कटेगा इसमें, ये कट जाएगा, इसमें कट गया. So 24 plus 24 कितना होता है, 48. 18 into 18, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों, देखो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी इसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो उसी तरह से जब हम आगे फर्दर करेंगे तो यू विल गेट द सेम थिंग. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये माइनस का है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव. ये प्लस का ही रहेगा 48x, 324 बिकम्स माइनस 324. नाउ अब क्या करेंगे हम, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 324. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 324? सो 2 इंटू 162, 2 इंटू 81, ठीक है, 3 इंटू 27, 3 इंटू 3 इंटू 3. सो बेटा इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए किसके, 324 के. अब हमें क्या चाहिए, वी वांट 48. सो देखिए 3 is 9, 3 is 27, 2 is 54 एंड 3 इंटू 2 6. व्हाट इज 54 माइनस 6? 48. तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 54 minus 6 times x minus 324 equal to 0. So when we open the bracket, 54x minus 6x minus 324 equals to 0. So then
अब इसमें क्या x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लिया तो x प्लस 54 इक्वल टू 0. So in this way we are able to get the factors. Now अब factors तो आ गए, we have to find the values, so we have to equate them with 0. So x minus 6 equal to 0. So what is the value of x? Minus 54 and 6. Same, speed can never be negative, so it is invalid. Speed can never be negative. So therefore the speed of the stream जो हमें find करनी थी वो कितनी हो जाएगी? Therefore speed of stream comes to be 6 km/h. Understand, students?